खुदावन में, खुदावन यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें मौका बख्शा कि हम उसकी हुजूरी में आ सकें और हम उसकी हमद व सताइश कर सके और हम अपनी दुआएं और मुनाजातें उसके हुजूर ला सके। उसका शुक्र बजा लाना हमारे लिए वाजिब है कि यही उसकी एक हेवन की करेंसी है। तो हम गीत गाते हुए, मदह सराय करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल होते हैं। तो मैं खुदावन की हमद व सताइश के लिए मैं यूनिका और मुस्कान को कहूंगी कि वो खुदावन की प्रस्तुत करें। खैर मैं जरा, मेरे ख्याल में यूनिका इससे पहले तो आप प्रस्तुत करें, मैं ओपनिंग प्रेयर करती हूँ। Dear Heavenly Father, we give you thanks and praise for love, mercy, grace, and abundance goodness. Thank you for this privilege that you have given us this in the mighty name of Lord Jesus Christ, so we can approach your throne of grace with a thanksgiving and praise, O Lord Jesus Christ. Oh Lord Jesus Christ, come and be present here. Pour your spirit onto us. We need your presence here, Lord, and we are asking that you come and accept this our praise and thanksgiving be accepted in the throne of praise. Father, first of all, thank you for all of us who are present here, who are present into your throne of coming and approaching your throne of grace. I pray for your blessing be upon them, Lord. And Father, I pray for your abundance, goodness, mercy be with us, Lord. Your grace and Holy Spirit be with us, Lord. Father, I pray for this. Thank you for this holy sanctuary ministry, but this masbah, this platform that you have provided us, so we can gather here and we can approach your throne of grace. Now your throne of grace, and then you open your heavens upon to us, and let this program go smooth and effective without any interruption, and let the program be very blessful for us, all of us, in the mighty name of Lord Jesus Christ. Amen. तो आइए हम यूनिका के साथ मिलकर खुदावन की वर्शिप करते हैं। तो यूनिका, मुस्कान, आप खुदावन की प्रस्तुति में कोई गीत गाएं। आप सबको सलाम। कभी सलाम। आज हम उसकी प्रस्तुति करेंगे, उसके नाम को जलाल देंगे और हम गीत गाएंगे। मेरे यस्सु जी दे जोर दी क्या बात है, मेरे यस्सु जी दे जोर दी क्या बात है, ओ दे अगे रोगा दी क्या औकाते, ओ दे अगे रोगा दी क्या औकाते, मेरे यस्सु जी दे जोर दी क्या बातें, जी दे जोर दी क्या बातें, बोलो यस्सु नाम विच उठनी बीमारिये, बोलो यस्सु नाम विच उठनी बीमारिये, यस्सु जी दे अगे तू ते कुछ नहीं बीमारिये, यस्सु जी दे अगे तू ते कुछ नहीं बीमारिये, ओदे अगे पहाड़ हलाक दावी खा के, ओदे अगे पहाड़ हलाक दावी खा के, मेरे यस्सु जी दे जोर दी क्या बातें, मेरे यस्सु जी दे जोर दी क्या बातें, हुन तेरा चलना नी वसदी गरीबीए, हुन तेरा चलना नी वसदी गरीबीए, मेरा दूल्हा बाप मेरा सज्जन करीबीए, मेरा दूल्हा बाप मेरा सज्जन करीबीए, जदों बादशाह मेरे नाल मैनू की काटे, जदों बादशाह मेरे नाल मैनू की काटे, मेरे यस्सु जी दे जोर दी क्या बातें, मेरे यस्सु जी दे जोर दी क्या बातें, अब्बा जी दे जोर दी क्या बातें, क्या बातें। आमीन आमीन आमीन। बेशक खुदावंद यीशु मसीह की क्या बात है, वही सब कुछ है।
and उसी के अलावा और कोई नहीं है. He is the one who has a power, authority, and glory, and he carries the glory, and he is the God Almighty, the creator of heaven and earth, and our Father, Heavenly Father, and our Savior, Redeemer of all. Thank you, Lord, for this wonderful praise, and we continue to worship the Lord, and I will sing the praise. I will sing the song. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes. Fulfill the law and prophets, to a virgin King of earth, from throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise you, Father, praise you, Son, praise you, Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise be forever to my King of kings. Thank you, Father, thank you, Son, thank you, Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise be forever to my King of kings. To reveal the kingdom coming, to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering, Jesus, you saw the other side. Knowing this was our salvation, our sake, you, Jesus, died. Praise you, Jesus, praise you, Son. Praise you, Spirit, in one. God of glory, majesty, praise be forever to my King of kings. Hallelujah, Father, hallelujah, Son, hallelujah, Spirit, in one. God of glory, majesty, praise be forever to my King of kings. Thank you, Heavenly Father. Thank you for everything that you do. Thank you for your mercy. Once again, Father, thank you for this beautiful time. And thank you for everything that you do for us. Thank you for all your abundance, mercy, and grace with us, Lord. Once again, Father, we continue to add that you accept our thanksgiving and praise. And अभी हम इसको हम अपनी प्रस्तुति को जारी रखते हुए मैं अभी पास्टर सदीक से कहूँगी कि वो खुदावन की हजूरी में उसकी प्रस्तुति सताइश करने के लिए कोई गीत गाएं. सदीक भाई आप इधर हैं? हाँ जी, आ रही आवाज. अच्छा, आप खुदावन की प्रस्तुति करेंगे? जी, मैं ज़बूर पर जाता हूँ. अभी मुझे ज़बूर निकाल लूं. Thanks, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. खुदा के बदले तेरी शुक्रगुजारी है, तेरी सताइश मालिक. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you. आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा. आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा. ओ ज़ोर मेरा है, मेरा प्यार है, ओ दे नाल
आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा ओहो डूंगे पानी विचों मैनू खिच ले आवेगा ओहो डूंगे पानी विचों मैनू खिच ले जावेगा आपे सॉरी ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा मेरे बारे दूती दुश्मन जिन्ना बैर वधाया है मेरे बारे दूती दुश्मन जिन्ना बैर वधाया है ओ ना खोलो मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है ओ ना खोलो मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है ओ जो मेरा है मेरा प्यार है वो देना ओ जो मेरा है मेरा प्यार है वो देना आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा मेरा कीता सामणो ना जदों सा मैं विपदा नाल मेरा कीता सामणो ना जदों सा मैं विपदा नाल पर खुदावंद मेरा रब सी मेरा वो चढ़ाने वाला पर खुदावंद मेरा रब सी मेरा वो चढ़ाने वाला ओ जो मेरा है मेरा प्यार है ओ देना ओ जो मेरा है मेरा प्यार है ओ देना आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा मैनू खुले थां दे उत्ते आपे कढ ले आया सी मैनू खुले थां दे उत्ते आपे कढ ले आया सी मेरे बाए मेरे उत्ते मैनू आप छुड़ाया सी मेरे बाए मेरे उत्ते मैनू आप छुड़ाया सी ओ जो मेरा है मेरा प्यार है ओ देना ओ जो मेरा है मेरा प्यार है ओ देना आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा आमीन आमीन Hallelujah. Amen. Amen. Psalm 62 say, truly my soul find rest in God. My salvation comes from him. Truly he is my rock and my salvation. He is my fortress. I will never be shaken. आगे Psalm 62 इसकी 5 to 8 verse में वो कहता है कि yes, my soul find rest in God. My hope comes from him. Truly he is my rock and my salvation. He's my fortress. I will not be shaken.
My salvation and my honor depend on God. He is my mighty rock, my refuge. Trust in him at all times. You people, pour out your hearts to him, for God to our refuge. Praise be you, Lord Jesus Christ. All the honors and glories to your Lord Jesus Christ. We'll continue to praise the Lord. I will ask, मैं अभी हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है भाई इरफान ने, मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वो खुदावन की प्रस्तुति को जारी रखें। तो भाई इरफान, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आप खुदावन की प्रस्तुति को प्लीज जारी रखें। मसीह यीशु के बाबरकत जिंदा और जलाली नाम में अब सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। आए हम खुदावन की इस्ताइश करें, खुदावन के नाम को जलाल दें। वो जो मुबारक खुदा है, वो जो भला खुदा है, उसकी इस्ताइश करें, उसकी तमजीद करें। वो जो हशमत के लायक है, वो जो बुजुर्गी के लायक है, आए उसके नाम को जलाल देना शुरू करें। खुदावन की इस्ताइश मिलकर करेंगे और गीत गाएंगे। तालियां बजाओ उम्मतो, कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ उम्मतो, कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ उम्मतो, कहो कि यीशु जिंदा है। मिलकर गाओ उम्मतो, मिलकर गाओ उम्मतो, कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ उम्मतो, कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ उम्मतो, कहो कि यीशु जिंदा है। सब मिलकर ताली बजाएं। तूफानों को हुक्म सुनाता, जो कहता है वो हो जाता। तूफानों को हुक्म सुनाता, जो कहता है वो हो जाता। तूफान हवाओं कहो, हालेलुया। तूफान हवाओं कहो, कहो कि यीशु जिंदा है। बजाओ मतो, कहो कि यीशु जिंदा है। बजाओ मतो, कहो कि यीशु जिंदा है। चांद और सूरज क्या है तारे, उसके नक्शे पा है सारे। चांद और सूरज क्या है तारे, उसके नक्शे पा है सारे। सबको बताओ मतो, हालेलुया। सबको बताओ यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ मतो, यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ, यीशु जिंदा है। बादलों को जो रात बनाए, पानी पर वो चलता है। बादलों को जो रात बनाए, पानी पर वो चलता है। आंखें उठाओ मतो, आंखें उठाओ मतो, कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ मतो, कहो कि यीशु जिंदा है। जो भी उसके दर पे आए, खाली हाथ कभी ना जाए। जो भी उसके दर पे आए, खाली हाथ कभी ना आए। हाथ उठाओ मतो, हालेलुया। हाथ उठाओ, यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ, यीशु जिंदा है। बजाओ मतो, कहो कि यीशु जिंदा है। मिलकर मिलकर गाओ मतो, कहो कि यीशु यीशु जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया।
कहो के यीशु जिंदा है, कहो के यीशु जिंदा है, कहो के यीशु जिंदा है, कहो के यीशु जिंदा है। हालेलुया। Hallelujah, hallelujah. Praise you, Lord Jesus Christ. Psalm 47 say, clap your hands, all you nations. Shout to God with cries of joy. For the Lord Most High is awesome, the great King over all the earth. He subdued nations under us. Then he say in a Psalm, verse 6, sing praise to God, sing praises to our King, sing praises, for King is the King of all the earth. Sing to him a psalm of praises. God reign over the nations. God is seated on his holy throne. Thank you, Lord. We know that you are sitting on your throne of grace. That is the reason we approach the throne of grace. Thank you for your holy presence here, Lord. And Father, we continue that you continue to pour your double portion of the Spirit here, Lord. We bless your name, praise your name, glorify your name. अभी हम खुदावन की प्रस्तुत को जारी करने से पहले मैं फयाज भाई से कहूंगी कि वो इस खुदावन की इबादत की चलती हुई इबादत के लिए दुआ करें, हम सबके लिए शुक्रगुजारी की दुआ करें, हम सबके लिए खुदावन की ब्लेसिंग मांगें। तो फयाज भाई आप प्लीज दुआ में रहनुमाई करें। हम दुआ करते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दूस, हम तेरे शुक्रगुजार हैं, नहायत तुझ में शादमानी मनाते हैं कि तूने हमें जिंदों की जमीन पे रखा। खुदावंद हमें मौका दिया कि हम तेरे मस्बा पर आए, तेरे नाम को मुबारक करें। तू मुबारक खुदा है। हम हर एक नेमत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और आज के इस मौका के लिए खुदावंद, जब हम इबादत में हैं, इस गीत ज़बूर गाए जाने के लिए, तेरी हम्दो सताइश के लिए, और जो लोग तेरी हम्दो सताइश करते हैं खुदा, हम उनके लिए बरकत की दुआ करते हैं और तेरे आगे खुदा झुक कर तेरा शुक्र करते हैं कि तुम्हें ये मौके फराहम करता है कि हम तेरी बंदगी करें, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। आज के गीत ज़बूर गाए जाना खुदा तेरे हुजूर बखूर की मान कबूल हों, और इसी तरह यीशु नासी जब हम दुआएं करें खुदा तेरे हुजूर सुनी जाएं, उन दुआओं के जवाब आए यीशु नासी। और जब तेरी आवाज को सुने, तेरे कलाम को सुने, उस कलाम के वसीला से खुदा बहुत सारे लोग बरकत पाएं। और खास तौर पर जिस वक्त जूम मीटिंग में बैठे हैं, वो खादम और उनके खानदान खुदा बरकत से महमूर हों। तेरा कलाम कसरत से फैलाया जाए और तू अपने बंदों को कसरत से इस्तेमाल कर यीशु नासी। तूने पाक कलाम में फरमाया, मैं दुनिया में इसलिए आया हूँ कि लोग जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। खुदा तुम्हें कसरत की जिंदगी दे, कसरत की बरकत दे, कसरत से कलाम दे, कसरत से हमें इस्तेमाल कर यीशु नासिर। हम और स्पिरिचुअल मिनिस्ट्री के लिए बरकत की दुआ करते, हम सिस्टर नसरीन के लिए, सिस्टर नुसरत के लिए सेहत, तंदुरुस्ती और बरकत की दुआ करते, सलामती की दुआ करते, भाई रशीद के लिए भी खुदावन देख खुदावन, तू जब हमारे साथ होना, तेरा पाक रूह हमारे साथ हो, फतह से बढ़कर गलबा दे। हम तेरे जलाल को देखें, हम तेरे पाक रूह को देखें यीशु नासरी। हम घटें, तू बढ़े, और तेरा नाम हमारी जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाए। मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आज मैसेज किसका था मुझे पता नहीं, पास्टर इरफान का मैसेज है? इरफान भाई मैसेज आपका है? नहीं सिस्टर जी। अच्छा, किनका मैसेज है? सदीक भाई का? मैं कोर्स गाना चाहूंगा मैसेज से पहले, अगर मुझे मौका देंगे तो। अच्छा, तो मुझे तो पता नहीं आज कलाम किसका है। जिसको भी खुदावंद हदायत करे, खुदा करूँ, वो थोड़ा सा कलाम पेश करे। आप सब में से कोई है जो खुदावंद का कलाम पेश करेगा आज? ठीक है, चलो करते हैं। आप करेंगे? ठीक है भाई, खुदावंद आपको बरकत दे। तो चले हम कलाम के से पहले खुदावंद की आवाज को सुनने से पहले हम कोर्स गाएंगे। तो हमारे भाई इरफान है जो कलाम के लिए कोर्स गाएंगे, फिर सदीक भाई कलाम के लिए दुआ करेंगे। तो आज का मैसेज खुदावंद की आवाज हमें सुनाएंगे फयाज भाई। तो आइए हम इरफान भाई के साथ से कोर्स सुनते हैं कलाम के लिए।
मेरी इल्तमास होगी सबसे कि काइंडली अपने माइक खोलें और अब आंखें बंद करेंगे, खुदा उनकी स्ताइश करेंगे और अपनी जिंदगियों के लिए खुदा पाक रूह को वेलकम करेंगे। वो जो हमारा अजीम रहनुमा और मददगार है, वो जो हमारी शफायत आहें भर भर कर करता है, उससे अपनी जिंदगियों में मांगना शुरू करेंगे। छू मुझे छू खुदा रूह, मुझे छू मुझे छू खुदा रूह, मुझे छू मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे छू मुझे छू मुझे छू मट्टी को संहार जैसे हाथों से में रखने सवारे, मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से सवारे यूं ही कलामी खुदा गूंदे बने हमारे यूं ही कलामे सब कहिए मुझे भर मुझे भर भर मुझे भर मुझे भर मेरी जान को, मेरी रूह को, छू मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन छू छू मुझे छू छू जीवन की ज्योति जलायो जैसे जले जोत तेरी, जीवन की ज्योति जलायो जैसे जले जोत तेरी, सोचे हमें की अच्छी अच्छी है सोच तेरी, सोचे हमें अच्छी अच्छी है सोच तेरी मुझे ले मुझे ले ले मुझे ले मुझे ले मेरी जान को, मेरे मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू छू मुझे छू मुझे छू आलू की जान की रोकी तू दूर कर दे, आलू की जान जिस्म की रोकी तू दूर कर दे,
खौफे पाकीज़गी भर दे, खौफे पाकीज़गी से भर दे, धो मुझे धो खुदारू, मुझे धो मुझे धो खुदारू, मुझे धो मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदा, मुझे Hallelujah. Praise you, Lord Jesus Christ. Thank you. Thank you, brother. Father, thank you for your holy presence here, Lord. Holy Spirit, we continue to praise and worship your name, Lord. Father, we are about to listen your word. And इससे पहले कि हम खुदावन के पाक कलाम को सुने, मैं सदीक भाई से कहूंगी कि वो खुदावन के कलाम के लिए और खुदावन के बंदा के लिए दुआ करें, ताकि ये खुदावन का जिंदा कलाम हमारी जिंदगियों में 100% फ्रूट लेकर आए। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुदस में हमारे स्वर्ग आसमानी बाप, हम जमीन तक झुक कर मालिक आपको सजदा करते हैं, क्योंकि आप जिस सजदों के लायक खुदावंद है। आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर इंसानों को और कोई नाम नहीं दिया गया, हम जिसके सामने झुके और सजदा करें, एक ही नाम है, वो सब नामों से आला अफजल उत्तम नाम है, वो यीशु नाम है, जिसके सामने हर एक घुटना झुकता है, का वो आसमानी हो का वो जमीनी हो का। मेरी जिंदगी के खालिक और मालिक यहोवा पाक खुदा, मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज शाम आपने मुमकिन किया कि खुदा फिर हम इस प्लेटफॉर्म से जमा होकर आपकी मदद सराई करें, आपकी तारीफ, आपकी तमजीद, आपकी सताइश करें मालिक पाक खुदा। और खुदा वक्त पहुंचा कि आपकी शीरी मीठी आवाज को सुने, जो हमारे राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है मालिक पाक खुदा। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज अपने पैगंबर को इस बात के लिए तैयार किया है कि वो अपने कलाम को, आपके कलाम को शेयर करे मालिक पाक खुदा। उसकी जुबान का जुम्मा लेना, गले का जुम्मा लेना, सांसों का जुम्मा लेना मालिक, उसे सर की चांदी से लेकर पाँव के तले तक छूना और भर कर देना खुदा, लफ्जों की तरतीब देना मालिक पाक खुदा, ताकि बोलने वाला तेरा बंदा ना बल्कि तेरा पागरू उसमें से होकर के कलाम करे मालिक पाक खुदा। और जहां तक खुदावंद तेरी आवाज जाए खुदावन पाक खुदा, वहां से खुदा जिंदगियां शराब होना शुरू हो जाए मालिक पाक खुदा। जहां तक तेरे कलाम की आवाज जाए वो जिंदगियां तब्दील होना शुरू हो जाए, बंधन टूटना शुरू हो जाए, चूहे टूटना शुरू हो जाए, बदरों की आजाद होना शुरू हो जाए, बीमारियों से लोग रिहाई पाना शुरू हो जाए मालिक पाक खुदा। रूहुल कुदस पाक खुदा, हम आपकी तारीफ करते हैं क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है कि तू अपने कलाम को नाजिल फरमाकर शिफा बख्शता है। आज जब तेरा कलाम नाजिल हो तो तेरे लोग शिफा पाए खुदा, रिहाई पाए, निजात पाए, मखलसी पाए खुदावन पाक खुदा। अपने बंदा का मुंह बन जाना खुदा, जितनी देर तेरा बंदा खुदा तेरे मजबा पर खड़ा रहे खुदावन, तेरा पाखरू उसे चारों तरफ से घेरे रखे मालिक पाक खुदा, ताकि खुदावंद आज का कलाम बहुत सारी जिंदगियों के लिए बाबरकत ठहरे मालिक पाक खुदा। 30 गुना 60 गुना नहीं बल्कि पूरे का पूरा 100 गुना फल रहा है मालिक। छू और बरकत दे, मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन 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 हालेलुया। अभी हम खुदा तालियों की आवाज में खुदावन के बंदा को और खुदावन के कलाम के लिए तालियां बजा के हम उनको खुशामदीद कहेंगे। तो आइए हम अपने माइक अनम्यूट करके तालियों के साथ खुदावन के बंदा को वेलकम करते हैं, ताकि वो खुदावन का पाक और जिंदा कलाम हमें सुना सके। Praise you Lord Jesus Christ. Thank you. Okay. प्यास भाई, आप
आइए खुदावंद के मसबा पे खुदावंद का कलाम शेयर करें हमारे साथ। थैंक यू सिस्टर जी। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने Bless पाक रूह की हिदायत से मुझे चुना और ये मौका दिया कि आज शाम फिर मैं आपके साथ और जितने लोग YouTube चैनल पर देखें उनके लिए कलाम की खिदमत कर सकूं। और मेरी ये दुआ है कि खुदावंद इस कलाम के वसीला से बहुत सारी बरकत सब लोगों को दे, ताकि हम कलाम के मकाशफा को, उसकी हिकमत और दनाई को अपने अंदर ले सकें और अपनी जिंदगियों में ले सके, ताकि हम खुदावंद के बंदे बनकर उसकी इबादत करने वाले और उसकी बादशाह में दाखिल होने वाले बन सकें। मेरी तरफ से आप सबको एक बार फिर सलाम, और मैं खुदावंद का भी शुक्र अदा करता हूँ, आप लोगों का भी शुक्र अदा करता हूँ, इस चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिस प्लेटफॉर्म से हम बात करते हैं और अपनी आवाज को, जो प्लेटफॉर्म जो है हमारी आवाज को दूसरों तक पहुंचने का वसीला बनता है, हम उस प्लेटफॉर्म के लिए होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के लिए भी बहुत शुक्र। आपका माइक ऑफ है भाई। यूहन्ना की अंजील में से एक कलाम जो है खुदा ने मुझे दिया है और ये बहुत प्यारा कलाम है, और जब मैं अंजील को स्टडी करता हूँ मैं खुद अपने अंदर बड़ी बरकत को महसूस करता हूँ। लिहाजा यूहन्ना की अंजील उसकी 15 बाब, उसका 15 बाब में बहुत अच्छे तरीके से सारा चैप्टर लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसकी 16वीं आयत को भी मरकजी आयत बनाता हूँ और फिर और आयतों पर भी बात करूंगा। पाक कलाम में लिखा है 15 बाब उसकी 16 आयत में, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको देगा। बहुत खूबसूरत कलाम है। इस कलाम के पढ़े जाने पर मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। आमीन। बहुत खूबसूरत कलाम है कि खुदा जो है वो हमें चुनता है, खुदा जो है हमें चुनता है, और खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को चुना कि वो जो है बहुत सारे लोगों के लिए बरकत का वसीला बने, और फिर दूसरे लोगों को भी अपने शागिर्द बनाता है, दूसरों को भी रसूल मुकर्रर करता है कि तुम जाओ और कौमों को शागिर्द बनाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। और जब हम इसको 5 आयत में, इसी चैप्टर में 15 बाब की 5वीं आयत में पढ़ते हैं तो ऊपर लिखा है, मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें वही फल लाता है। मेरे अजीजों, अगर हम फल लाना चाहते हैं तो हम अपनी ताक के साथ, जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं और जो हमारा हकीकी दरख्त है वो यीशु मसीह नासरी है, जब हम उसमें जुड़े रहेंगे तो फिर ही हम फल ला सकेंगे। और अगर हम फल नहीं लाते और जब हम आगे जाकर पढ़ते हैं और जो डाली उसमें कायम नहीं रहती, वो लिखा है फेंक दी जाती है, और जब वो फेंक दी जाती है वो सूख जाती है, और जब वो सूख जाती है उसको आग में डाल दिया जाता है। ऐसे लोग जो खुदा यीशु मसीह से दूर हट जाते हैं, उससे जुदा हो जाते हैं। जब इसी चैप्टर को हम आगे पढ़ते हैं तो पाक कलाम में लिखा है, तुम मुझसे जुदा होकर क्या कर सकते हो? अगर कोई मुझ में कायम रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता है, सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं। और पाक कलाम में लिखा है, जैसी मैंने तुमसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैं तुमसे मोहब्बत रखता हूँ। और लिखा, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लो, जब भी तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। आज शाम हमें अपनी जिंदगी में फल ढूंढना है। आज शाम हमने अपने आप को देखना है कि हम कितनी रूहें बचाते हैं, हम कितनी रूहों के पास जाते हैं, हम कितनी रूहों को कलाम सुनाते हैं, कितनी रूहों के कलाम की मनाती करते हैं। मैंने देखा है बाज़ का हम ऐसी जगहों पर काम करते रहते हैं, ऐसे लोगों को कलाम सुनाते रहते हैं जो पहले से ही कलाम को जानते हैं, जो पहले से ही मसीही हैं, जो पहले से ईमानदार हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा खास तौर पर वो खातमों को कि वो ऐसी लोगों पर जाकर मनादी करें जहां मनादी की जरूरत है, ताकि वो फल ला सकें, ताकि नई फसल काट सकें। ऐसा ना करें कि उन्हीं लोगों के पास जाते रहें। पाक कलाम में लिखा है, ये मैं आयत पढ़ रहा, 5वीं आयत, उसको दोबारा पढ़ूंगा। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में कायम रहता है मैं उसमें वही फल लाता हूँ, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। ये आयत को मैं पढ़ना चाहता था। पाक कलाम में लिखा है,
कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। सो मेरे अजीजों, आज शाम ये हमारी जिंदगी के लिए सबक है। अगर हमने कुछ करना है तो हमें यीशु मसीह में पेवस्त रहना है। कोई दरख्त, कोई पौधा जब अपनी शाख से, अपनी ताक से जुदा हो जाता है तो फिर वो फल नहीं ला सकता, वो डालियां सूख जाती हैं। और यहाँ पर बार बार इस चैप्टर में आगे भी लिखा है कि अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसा मैं अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। हमें क्या करना है? हमें खुदावंद के हुक्मों पर अमल करना है। हमें क्या करना है? हमें यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल करना है। अगर हम उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते, खुदा के हुक्मों को नहीं मानते, यीशु के हुक्मों को नहीं मानते, फिर हम उसमें कायम नहीं रह सकते। जब हम कायम नहीं रहते तो फिर जो है हमारी जो है सवाल शुरू हो जाता है। और पाक कलाम हमें बताता है, जैसे हम पढ़े फिर साथियां, फिर दोबारा मैं करूंगा 7 है, मैं डिफरेंट वर्सेस में जाकर आपको ये बातें इशारतन बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह जान सके। ये चैप्टर जो है 15वां चैप्टर यूहन्ना की इंजील का, जिसमें कहा गया कि यीशु जो है अंगूर का हकीकी दरख्त है। और 7वीं आयत में फिर वो कहता है, और जो मुझ में कायम रहे, तुम जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और फिर क्या है, जब हम उसमें कायम रहते हैं, हम जो मांगते हैं हमें मिल जाता है। हम जो दुआ करते हैं वो दुआ सुनी जाती है। हम किसी मरीज के लिए दुआ करते हैं, वो मरीज शिफा पाता है। जिस तरह अभी भाई सदीक ने कहा कि वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर शिफा को जारी करता है। जब तक हम उसमें पेवस्त नहीं होंगे, फिर हम बदरूहों को भी नहीं निकाल सकते। जब हम पेवस्त हैं, बदरूहें भी हमारे ताबे हो जाती हैं। हम सांपों और बिच्छुओं को भी कुचलते हैं। लोग बीमारियों से भी शिफा पाते हैं, लोग औलाद की बरकत भी पाते हैं। और इसी तरह जब मैंने 15वीं 16वीं आयत पढ़ी, वहां पर भी ये लिखा था कि जो कुछ तुम मेरे नाम से, जो कुछ बाप से मांगोगे वो तुमको देगा। मेरे अजीजों, हमें आज ये इस कलाम पर सोचने की, समझने की बेहद जरूरत है, मेडिटेशन करने की बेहद जरूरत है, ताकि हम वो कुव्वत खुदावंद से पा सकें कि जो कुछ हम मांगे वो हमें मिल जाए। पाक कलाम कब मिलेगी? ये पाक कलाम हमें बताता है हमें ये कुव्वत, ये बरकत, ये फल कब मिलेंगे? जब हम उसमें व्यवस्थ होंगे। मैं एक वाला आपके साथ और रखना चाहूंगा, मत्ती की अंजील में से थोड़ा सा है। वो यहाँ पर लिखा दरख्त और उसका फल। यहाँ पर लिखा है कि झूठे नबियों से खबरदार हो। मत्ती रसूल की अंजील उसका 7 बाब उसकी 15 आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। झूठे नबियों से खबरदार हो, जो तुम्हारे पास भेड़ियों के भेष में आते हैं, मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त फल लाता है। और अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता और ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। आज हमें इस बात की अशद जरूरत है कि हम झूठे नबियों को, ऐसे लोग जो एंटी क्राइस्ट बातें करते हैं, ऐसे लोग जो खुदा के खादमों की मुखालफत करते हैं, ऐसे लोग जो खुदा के खादमों के खिलाफ बोलते हैं और ऐसे लोग जो गलत तालीम देते हैं, हमें उनकी पहचान पैदा करनी है। पाक कलाम बात बताता है कि बुरा दरख्त अच्छे फल नहीं ला सकता, हमने फलों से पहचानना है। और ना ही अच्छा दरख्त जो है वो बुरे फल लाता है। इंसान अपनी जिंदगी, अपने किरदार, अपने बैठने उठने से, अपने बोल चाल से और अपने सारे अमल से पहचाना जाता है। और लोग जो है, आज लोगों में बड़ी पहचान है, आज लोगों में बड़ी अवेयरनेस है। हम ऐसे दौर में नहीं है जहाँ किसी को कलाम का नहीं पता, जहाँ किसी को साइंस का नहीं पता, जहाँ किसी को सियासत का नहीं पता। लोग एक एक बात से अवेयर हैं। और पाक कलाम हमें बताता है, जब हम चुनाव की बात भी करते हैं, पाक कलाम कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। जब यीशु चुनता है, हम चुनाव की बात करते हैं। और फिर जब यशायाह को चुनता है, जब यिर्मयाह को चुनता है और ऐसे मुख्तलिफ अंबिया को चुनता है, वो लोग खुदा के आगे अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। कहते हैं हाँ मैं हाजिर हूँ, भेज, मैं तैयार हूँ, भेज, मुझे जहाँ भेजना चाहता है मैं हाजिर हूँ। और मैं आज पढ़ रहा था, इसको पढ़िएगा मेरे साथ, इस कलाम को जरूर देखिएगा। ये बात मैं उस दिन भी कर रहा था। पाक कलाम में लिखे खरूज की किताब उसका 19 बाब उसकी 5 आयत में पढ़ूंगा आपके लिए।
सो अब अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो तो सब कौमों में से तुम ही मेरी खास मलकियत ठहरोगे, क्योंकि सारी जमीन मेरी है। और छठी आयत में बताते हैं, और तुम मेरे लिए कहनों की एक ममलकत और एक मुकद्दस कौम होगे। कब? जब हम खुदावंद के साथ चलेंगे, खुदावंद के अहद पर चलेंगे, उसकी बात को मानेंगे और सारी कौम इसराइल को और सब लोगों को जो खुदावंद के मानने वाले हैं, जो मसीहा के मानने वाले हैं, उसने कहनों की जमायत बनाया है और कहता तुम मेरी ममलकत हो, एक मुकद्दस कौम हो। इसलिए हमें क्या चाहिए? हमें अपनी जो है, अपनी जो बुलाहट है, अपनी जो वोकेशन है, उसको पहचानना चाहिए कि खुदा ने हमें किस मकसद के लिए बनाया है, खुदा हमसे क्या चाहता है। खुदा हमसे अपनी बंदगी, अपनी प्रतिष्ठा चाहता है। खुदा हमसे ये चाहता है कि हम बहुत सारा फल लाएं। खुदा हमसे ये चाहता है कि हम बहुत सारी फसल काटें। और पाक कलाम में लिखा है, फसल तो बहुत है मगर मजदूर थोड़े हैं। हमें एक ऐसे मजदूर बनना है, हमें एक ऐसा काहिन बनना है, हमें एक ऐसा खादम, खुदा का नौकर बनना है कि हम जो है लोगों को खुदा के कलाम की खिदमत करते हुए लोगों को खुदा के पास ला सकें, ताकि वो भी खुदा की पहचान में बढ़े। वो बुत परस्ती, झूठ, बेकार, धोखा और जो घिनौनी जिंदगी है और जो घिनौने काम है उनको छोड़ें, ताकि वो फल ला सकें, अच्छा फल ला सके। बुरा दरख्त बुरे फल लाता है और बुरे दहन से, बुरे दिल से, बुरे ख्यालात से बुरी बातें निकलती हैं। अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं, आपको खुदा के आगे झुकना होगा। आप अगर अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छा फल लाना चाहते हैं, अपने आप को मसीहा के आगे सरेंडर करना होगा, ताकि अपनी जिंदगियों से अच्छा फल दिखा सकें, ताकि दूसरे लोगों के लिए भी एक अच्छी जिंदगी का नमूना देते हुए उनके लिए भी बरकत का वसीला बन सकें। आज शाम हमें दूसरों के लिए बरकत का वसीला बनना है, अपने आप को तब्दील करना है, अपने आप को खुदा की बादशाहत के लिए तैयार करना है, ना सिर्फ अपने आप के लिए। मैं चाहता हूँ, मेरा ये ख्याल है, पाक कलाम भी हमें इशारा देता है कि हम दूसरे लोगों को भी बचाएं, खुद भी निजात पाएं और दूसरों के लिए भी निजात का वसीला बने। तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, प्लीज इस कलाम को अपने जहन में लें, इस कलाम को अपने अंदर लें, ताकि कलाम जो है अपनी जिंदगियों में से अमल करते हुए फल दिखा सके। और जब दूसरे लोग अपनी जिंदगियों से फल देखें, वो भी वैसा ही बनने की कोशिश करें और अपने आप को खुदा की बादशाहत के लिए तैयार कर सके। जबकि हम अपने आप को खुदा की आबदसानी के लिए, उसके दोबारा आने के लिए, उसकी बादशाहत के लिए तैयार कर रहे हैं। आज इस कलाम के वसीले से प्लीज आप जरूर सोचिएगा, इस कलाम को जरूर पढ़िएगा। यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब में से 1 से लेकर 17-18 आयत पढ़ सकते हैं। जरा मत्ती की इंजील में से फरूज की किताब 19 बाब उसकी 5, 6, 7 आयत को स्टडी करें कि खुदा जो किस तरह आवाज देता है, खुदा जो किस तरह अहद बांधता है, ताकि सब लोग जो हैं उसके लिए उसकी खास मलकियत हो सके, उसकी खास मुकद्दस कौम हो सके और उसके लिए खास काहिन बन सके। अजीजों, इस कलाम की वजह से मैं दुआ करता हूँ आप सबके लिए कि खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आप सबको चुने, जिस तरह खुदा ने यशवा, मूसा, यशायाह को चुना, यिर्मयाह को चुना, इसी तरह चुने। और आप लोग भी उन्हीं की तरह ये कहने वाले बन जाएं, बोल कि मैं हाजिर हूँ, बोल कि मैं तेरी बात सुनता हूँ, भेज जहां तू मुझे भेजना चाहता है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। हमें अपने आप को हर वक्त खुदा के कामों के लिए तैयार रखना चाहिए, खुदा की आवाज पर लबैक कहना चाहिए, खुदा को हाजिर कहना चाहिए। खुदा इस कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको बरकत दे। आमीन। आमीन। खुदावंद आपको भी बरकत दे। बेशक खुदावंद यीशु मसीह ही ट्रू वाइन है, वही वाइन है, हम उसकी ब्रांचेस हैं। और जब तक हम उसमें जुड़े रहते हैं तो हम खुदावंद हम उसमें जुड़कर फल लाते हैं, तो हम वो रूह के फल लाते हैं। जैसे कि भाई ने अभी थोड़ा सा जिक्र किया कि आजकल हम अपने जो खुदावंद के बंदे हैं उनको उन पे पिक ना करें, उनको किसी चीज से उनका कैरेक्टर डेफिमेट ना करें, क्योंकि वैसे भी अगर कोई बंदा गुनहगार है उसका भी कोई हक नहीं बनता कि हमें किसी का भी कैरेक्टर को जो है ना उसको डेफिमेट करें। क्योंकि जहां मैं रहती हूँ, मैं यहाँ पे ये बता दूं कि जब हम किसी के कैरेक्टर को डेफिमेट करने की कोशिश करते हैं तो इसके लिए भी एक लॉ सूट है। तो खुदावंद की नजर में भी वो बंदा मुजरम ठहराया जाता है जब वो किसी दूसरे बंदे के कैरेक्टर को उछालता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्पेशली खुदावंद के बंदे के खिलाफ, चाहे वो जैसा भी है,
गुनाहगार तो सभी हैं। अब आप देखें कि मीडियोक्रिटी जो है वो तो हर एक बाइबल हीरो में थी। कौन सा ऐसा बंदा नहीं था बाइबल हीरो में से जिसने गुनाह में नहीं गिरा था। लेकिन ये इस चीज का हमें बताती है बाइबल मुकद्दस कि खुदावंद इन चीजों को नहीं देखता, वो राइचस हार्ट को देखता है। जब बंदा अपनी चीजों से मुड़ के खुदावंद की तरफ आ जाता है, खुदावंद की तरफ तवज्जो करता है, तो खुदावंद उसको वो सिर्फ बेटे की तरह वो दरवाजे पे खड़ा रहता है, वो उसके इंतजार में रहता है। बाकी जहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि खुदावंद आजकल जो मैं देखती हूँ, जब भी हम यूट्यूब ऑन करें तो उसमें कोई पास्टर अनवर फजल के कैरेक्टर को डेफिमेट कर रहा है, उसकी बीवी के कैरेक्टर को डेफिमेट कर रहा है। ये बिल्कुल गलत है, ये खुदावंद का कलाम नहीं है। क्योंकि जिस बंदे ने फल लाना है उस फल से वो खुद ही पहचाना जाएगा, क्योंकि कुल्हाड़ा तो खुदावंद के पास है, खुदावंद ने काटना है। हमारा काम नहीं है कि हम किसी को पिक करें, हम किसी को जज भी नहीं कर सकते, ये खुदावंद का काम है, हमारा काम नहीं है। तो हमें खुदावंद के बंदे होते हुए जब हम रूह में चलते हैं तो हमें किसी के दूसरे की तरफ उंगली नहीं उठानी चाहिए। क्योंकि जब हम किसी की तरफ उंगली उठाते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि इधर मैं उंगली करती हूँ तो आप देख लें कि आप एक उंगली इधर कर रहे हैं तो बाकी 4 उंगलियां आपकी तरफ है। ये खुदावंद की उंगलियां हैं जो आपकी तरफ हैं। जब आप किसी को पॉइंट आउट करेंगे फिर आपका भी कैरेक्टर डेफिमेट किया जाएगा। जब आप किसी को जज करेंगे तो आपका भी जज खुदावंद करेगा। जब आप किसी को कर्स करेंगे तो आपका भी खुदावंद कर्स करेगा। इसलिए ना तो हमें किसी को जज करना है, ना हमें किसी को कर्स करना है, और ना ही हमें किसी किसी के करैक्टर को उछालना है। और बाकी पहले भी हम लोग कह चुके हैं कि खुदावंद का बंदा जो है, वो खुदावंद का अनॉइंटेड बंदा जो होता है, उस पे तो आप हाथ क्या आप उसके खिलाफ बात भी नहीं कर सकते। क्योंकि जब हम उसके खिलाफ बात करते हैं तो हम खुदावंद की आंख की पुतली को छूते हैं। ये हम नहीं जानते कि वो उन सब पास्टर हजरान की क्या मतलब वो किस तरह करते हैं, क्या करते हैं, क्या वो खुदावंद के साथ पूरे दिल से चलते हैं या नहीं चलते, ये हमारा काम नहीं है। क्योंकि बात ये है कि भी हर बंदा गुनाह में गिरता है और हर बंदा गुनाह करता है। हम सब गुनहगार हैं, हम में से कोई भी ऐसा परफेक्ट नहीं है। लेकिन सबसे खुशकिस्मती की बात यह है कि हम सब पे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से फजल हुआ है। तो आज हम ये इरादा करें कि जब हम खुदावंद के मज़बा पर बैठते हैं और हम खुदावंद के पाक कलाम ही को लेकर चलें और खुदावंद की जो ट्रू डॉक्ट्रिन है उसी को फॉलो करें। क्योंकि हम किसी के पिक जब हम किसी के ऊपर पिक करेंगे तो कोई हमारे ऊपर पिक करेगा। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि जज नॉट यू विल बी जज, कर्स नॉट यू विल बी कर्स्ड, पिक नॉट यू विल बी पिक्ड टू। तो इस चीज से मोहतात रहें। हम सब अपने आप को रिमाइंड करवाते हैं कि हम एक दूसरे के लिए एक दूसरे की रूह को रोशन करने के बारे में बात करते हैं, ना कि हम किसी को नीचा दिखाने के बारे में बात करते हैं। हम परफेक्ट नहीं है, हम परफेक्ट होकर खुदावंद के उस जलाल में चलने की कोशिश करते हैं ताकि हम वो ग्लोरी का ताज हासिल करें जब वो अपनी बादशाही में आए। तो इस पाक कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। और मेरा ईमान है कि आप लोगों को इसके मैसेज की जो डीप बातें हैं खुदावंद ने जो आपके साथ की हैं, आप उसको समझकर उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। तो खुदावंद में आप सबकी फिर से सलामती चाहती हूँ। तो आइए हम इस खूबसूरत पाक कलाम के लिए हम यूनिका और मुस्कान में हमारे साथ कोई है तो इस कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करें। कोई है? यूनिका, मुस्कान? लगता वो नहीं है। चले आज इस पाक कलाम के लिए जो हमने खुदावंद का कलाम, खुदावंद की बातें हमारे भाई फयाज के मुंह से सुनी है, हम उनके लिए बरकत चाहते हैं, खुदावंद के बंदा के लिए दुआ करते हैं और खुदावंद के पाक कलाम के लिए भी, उसकी बरकत के लिए भी हम दुआ करें। तो चले यूनिका दुआ करें आप बेटा।
सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। कद्दूस को देखो आसमानी बाप में दिल दिख रहे हैं, से आपको शुक्र अदा करते हैं खुदा कि आपने जिंदा और जिंदा की जमीन पर रखा है खुदा, जिंदा अपना खुदा का आसमान करते हैं खुदा। हमारे जिंदगी से खुदा आपका मकसद पूरा और है खुदा, आपके नाम को इज्जत और जलाल मिले है खुदा। ऐ खुदा जितने देर तक तेरी बात तेरे नाम को जलाल मिला है खुदा, तू उससे खुश होने वाला बनना है खुदा। और ऐ खुदा जिसने कलाम किया खुदा, मैं उसके लिए बरकत की दुआ चाहती हूँ खुदा। जो जो खुदा उसने कलाम में अल्फाज बोले हैं खुदा, उन सब के तेरे पाक रूह को चाहती हूँ खुदा। ऐ खुदा उनको छूना है खुदा, जितने लोग खुदा ज़ूम पे ऑनलाइन है खुदा, इन सबके लिए बरकत की दुआ मांगते हैं खुदा, इनके घरानों के लिए बरकत की दुआ मांगते हैं खुदा। ऐ खुदा इन सबको छूना है खुदा, सबको बड़ी बरकत देना है खुदा। और जितने लोग ज़ूम पर ऑनलाइन नहीं हुए खुदा, उनके लिए दुआ मांगते हैं खुदा कि उनकी टेंशन फिक्रों को दूर करा, ताकि वो भी तेरे नाम को जलाल और तेरे नाम की तमजीद करने वाले बने। मेरी छोटी सी दुआ को सुनना और कबूल करना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। तो अभी हमारी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है? मुस्कान है? जी जी मुस्कान आपकी भी है। मुस्कान से कहें कि वो सारी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए दुआ करेंगे। किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है? हम उस बच्ची के लिए, मैडी के लिए दुआ करेंगे जो कल के हॉस्पिटल में थी। उसको थोड़ा सा, वो बहुत कमजोर है, उसको डिहाइड्रेशन थी, कल वो ईआर में थी। बाकी उसका सब कुछ ठीक है, वो खाती पीती नहीं है, वो ऐसे उसको कोई एंजाइटी है, कोई एंशियसनेस है कि वो प्रोटीन प्रोडक्ट्स नहीं लेती, तो वो बहुत लिमिटेड खाती है, वेजिटेरियन है, 16 साल की बच्ची है। हम उसके लिए दुआ करेंगे और हम सबके लिए दुआ करेंगे, और जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमने कल या परसों रखी थी, हम उन सब के लिए दुआ करेंगे। जितने दुख तकलीफ बीमारियों की हालत में है, जो नशे की हालत में है, उन सब के लिए हम मुस्कान के साथ मिलकर दुआ करेंगे। तो मुस्कान, आप इन सारी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए दुआ करें प्लीज। ये हम सब मुत्तफिक होकर खुदावन के हजूर दुआ करने वाले होंगे, क्योंकि जो दुआ हम मुत्तफिक होकर करते हैं, खुदावन हम सबकी दुआओं को कबूल करता है। बेशक हम जब अपने खुदा से मांगते तो वो हमें देने की कुदरत रखता है। आइए आसमान के खुदा के आगे सब हम मिलकर दुआ करने वाले होंगे। आसमानी पिता खुदा, तेरे नाम की शुक्रगुजारी करती है यीशु मसीह के नाम से खुदा, तेरे जलाल के लिए खुदा, तेरी बरकत के लिए खुदा, तेरे हुजूर शुक्रगुजारी की दुआ करते खुदा, इस पूरी इबादत के लिए खुदा, तेरे हुजूर शुक्रगुजारी की दुआ करते खुदा। तेरा जलाल, तेरी बरकत हम सब पर है खुदा। तेरे बड़े हुए हाथ के लिए खुदा हम सब तेरी हजूरी में आ जाते खुदा। इस बात के लिए तेरे हुजूर शुक्रगुजारी करती खुदा, अपनी लोगों को तू अपने हजूर लेकर आता है खुदा। इस बात के लिए तेरे हजूर शुक्रगुजार है खुदा। जितने भी ऑनलाइन खुदा हम सब मिलकर तेरे नाम को जलाल दिया, इस बात के लिए तेरे हजूर शुक्रगुजारी की दुआ करते खुदा। जितनी दिन हमने वर्शिप की खुदा, तो सुनता रहा, जब तेरे कलाम के बोलने का वक्त है तो खुदा हमने भी तेरे कलाम की आवाज को सुना, तो खुदा आज के कलाम के वसीला से हर तरह के बंधन जुए उसके नाम से टूटते चले गए खुदा। इस बात के लिए तेरे हजूर शुक्रगुजारी की दुआ करते खुदा। जितने भी बीमार लुचार है खुदा, तेरी हजूरी में उन सबके लिए दुआ करते खुदा। तू सबको चंगा करने की कुदरत रखता है, क्योंकि खुदा तो हमारा आसमानी पिता है खुदा। तेरे घर से मांगते खुदा, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा मखलूक नहीं जिसके आगे झुके और सजदा कर सके खुदा। तू आखिर और अव्वल है खुदा। जितनी भी तेरे हुजूर दुआएं रिक्वेस्ट है खुदा, उन सब के लिए तेरे हुजूर से दुआ करती खुदा। हम उनसे दूर है लेकिन तू उनके करीब है खुदा। अपने कुदरत वाले हाथ को बढ़ाकर खुदा शिफा के चश्मे नाम से जारी और सारी कर दे खुदा। तेरा फाते मन लो उन जिंदगियों पर खुदा, तेरा फाते मन लो, फाते 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 रहे खुदा। तेरा जलाल, तेरी बरकत सुनाम से शहर दे खुदा। जितने भी तेरे हुजूर तेरे लोग मिलकर हम मुत्तफिक होकर खुदा तेरे हुजूर दुआ गो है खुदा। हर तरह की परेशानियां, टेंशन, फिक्र यीशु नाम से जाती रहे खुदा। हर तरह के बंधन जो है यीशु मसीह के नाम से टूटते रहे खुदा। जहां जहां भी तेरे नाम की, तेरे कलाम की खुदा बयानी करते तेरे खादम खुदा, सबको बरकत दे खुदा, सबको मुकाशवात के बेद दे, इल्मियत का कलाम दे, नबूवत का कलाम दे, ताकि इसी तरह तेरे कलाम को सुनाते रहे, तेरे नाम का प्रचार करते रहे, और खुदा दुनिया की इंतहा तक तेरे कलाम की बयानी करने वाले यीशु मसीह के नाम से खुदा। इस पूरी ऑनलाइन इबादत के लिए तेरे हुजूर दुआ कर खुदा। जो हम मुत्तफिक होकर तेरे हुजूर एक ऑनलाइन मीटिंग करते खुदा, हमारी इबादत को अपने हुजूर बखूर की मदद कबूल करना। हम कमजोर है लेकिन तू जोरावर बाप है खुदा। तुम्हारी कमजोरियों को शायद जोरियों में बदलने की कुदरत रखता है खुदा।
और तेरे दर पर आते खुदा तुझी से मांगते खुदा। तूने कहा ईमान से मांगो तो तू देने की कुदरत रखता है खुदा। हम ईमान से और मुत्तफिक होकर तेरे हजूर से मांगते हैं, क्योंकि खुदा तेरे कलाम में भी लिखा है कि जो तुम जमीन पर मुत्तफिक होकर बांधते हो वो आसमान पर बन जाता है। जो आसमान पर बन जाता है खुदा, तेरी बरकत तेरी ब्लेसिंग ये नाम से खुदा हम सब पर ठहर जाए खुदा। जितने भी लोग ऑनलाइन होकर इबादत कर रहे हैं खुदा, सबका नाम बेनाम बरकत देना और अपने जलाल के लिए खुदा इसी तरह इस्तेमाल करना खुदा। इसी तरह तेरी बेटियों के लिए खुदा तेरे हुजूर दुआ खुदा, जो तेरी इबादत का आगाज करती है खुदा, इनको इसी तरह और अपने नाम में अपने जलाल में बढ़ने की कुदरत दे, ताकि खुदा तेरे कलाम की बयानी इसी तरह तेरे नाम का प्रचार करते रहे खुदा। तेरे घर से बरकतों के ढेर यीशु नाम से खुल जाए खुदा। और खुदा जितने लोग तेरे हजूर सरनुग हुए खुदा, सबको नाम बेनाम बरकत देना खुदा। अपना कुदरत वाला हाथ बढ़ाए रखना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब हम सब खुदावन की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे, तो अपने अपने माइक अनम्यूट करें तो हम दुआ शुरू करेंगे। आए हमारे बारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में दे, जिस हम अपने कसूर को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह को तो जलाल हमेशा से तेरे ही है, आमीन। अब हम कलामे बरकत सिद्दीक भाई के साथ अदा करेंगे। सिद्दीक भाई, आप कलामे बरकत अदा कीजिए। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत और रफ़ाकत जो कि जानों के साथ, पाक खुदा तेरे ईमानदार लोगों के साथ, तेरी कौम बनी इस्राएल के साथ, होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के साथ, और खुदावंद पाक खुदा शहर यरूशलेम के साथ अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक कायम रहे, आमीन। आमीन आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह आमीन। जिसमें आमीन। हम सबकी सलामती हो। May his peace, love, mercy, grace, Holy Spirit be with us all now. तो कल फिर कौन मैसेज तैयार करेगा? मैं यहाँ मैं इसको पहले ऑफ करूँ।